A very good morning, students. Welcome to e-learning classes of Sacred Hearts. In the lecture of business studies, previously we have discussed the meaning of insurance and the different principles of insurance, in which we have discussed about the principle of utmost good faith, insurable interest, principle of indemnity, principle of contribution, thereafter principle of subrogation, next principle of causa proxima, and last but not the least principle of mitigation of loss. Now today in 21st lecture we are going to discuss about the different types of insurance. The very first topic of today's lecture is insurance and assurance. Dear students, both the terms seem synonyms to us, but there is a very basic difference between both of these terms. These are not synonyms but are the different terms. Initially we will discuss about the insurance, although we have discussed it earlier as well, but again we are going to discuss about the insurance. Insurance is a contract in which compensation is provided on the happening of a particular event. ठीक है, insurance is a contract in which the certain amount of compensation is provided when a particular event used to occur. In the case of insurance, the sum assured is paid only when the insured suffers a peculiar loss. In this condition, in the condition of insurance, only the compensation will be paid when there will happen a condition of loss. When there will be happen a condition of loss, otherwise the compensation will not be payout. Now the next term, that is the assurance, that resembles from it. Assurance refers to a contract in which the sum assured is bound to paid sooner or later, जिसमें जो इंश्योरर है वो बाउंड है पे करने के लिए, टू होम, ऑब्वियसली टू एश्योर्ड, सूनर और लेटर, या तो वो इनिशियली पहले कर देगा या फिर वो लेटर ऑन करेगा. ठीक है. एंड हाउ डज इट वर्क? सी, द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ लाइफ इंश्योरेंस इज़ अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एश्योरेंस. जो लाइफ इंश्योरेंस हम लोग बोलते हैं, एक्चुअली इट इज़ अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एश्योरेंस. वाई? बिकॉज इन दिस कॉन्ट्रैक्ट द इंश्योरेंस इज बाउंड, द इंश्योरर इज बाउंड टू पे द कंपनसेशन. इसमें क्या होता है बेटा, जो इंश्योरर है वो बाउंड होता है क्या करने के लिए? कंपनसेशन पे करने के लिए, ईदर एट द डेथ ऑफ द इंश्योर्ड, या तो जब इंश्योर्ड की डेथ होती है, और ऑन द एक्सपायरी टाइम पीरियड ऑफ पॉलिसी. ठीक है. या फिर क्या हो जाए, जो लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी वो क्या हो जाए, एक्सपायर हो जाए. इन दोनों में से जो भी कंडीशन फर्स्ट अपीयर होती है, इनिशियली अकर होती है, उस कंडीशन में जो एश्योर्ड होता है, जो इंश्योर्ड होता है, उसको इंश्योरर, दैट मीन्स इंश्योरेंस कंपनी, कंपनसेशन पे करती है. ठीक है. तो व्हाट इज़ द बेसिक डिफरेंस? इन द कंडीशन ऑफ इंश्योरेंस द कंपनसेशन इज पेड ऑन द हैपनिंग ऑफ एन इवेंट ओनली, और एश्योरेंस में ऐसा कुछ नहीं होता है. द अमाउंट विल बी पेड आइदर एट द time of death of the particular person or at the time of expiry of the particular life insurance policy, whichever occurs before. Now see the difference between insurance and assurance. The very first basis of difference is the term. In the insurance beta, the term insurance is used when the risk is uncertain. If we talk about the fire insurance, or if we talk about the insurance, so there are some chances that the property can be damaged, or there are the equal chances that the property may not be damaged. Okay. So in insurance condition, in the time of insurance, in the concern of insurance, there is the uncertainty whether the event may happen or whether the event may not happen. But if we talk about the assurance, the term assurance is used when there is a 101% surety that the event will occur. The event can occur sooner or event can occur later one. Next basis is the compensation. In insurance, compensation is paid only on the happening of an event. Insurance condition में अगर आपका वो event occur होता है, for example you have taken the fire insurance, so if there will be event of fire और उससे आपको loss होगा, then only the compensation will be paid. And in assurance, the compensation is paid whether the event happens or not. चाहे वो event occur हो या फिर ना हो, लेकिन आपको compensation assurance में मिलता है. And last basis of difference, that is example, fire and marine insurance,
is example of insurance and life insurance is example of assurance. So this is about the basic difference between insurance and assurance. Now we are coming to the next topic, that is the types of insurance. So dear students, if we talk about the types of insurance, so there are the different type of insurance. You can see you people, all people are having books. In the books as well you can see a flow chart in which insurance is bifurcated into four part: life insurance, fire insurance, marine insurance, and then health insurance. So we are going to discuss them one by one. So very first we are taking the life insurance. Why people used to take life insurance? Because to minimize the risk of the life, अपनी लाइफ के रिस्क को मिनिमाइज करने के लिए. नाउ व्हाट आर द डिफरेंट रिस्क दैट कैन बी अकर्ड इन द लाइफ ऑफ अ पर्टिकुलर पर्सन? वो कौन से रिस्क हैं जो किसी पर्टिकुलर पर्सन की लाइफ में हो सकते हैं? सो द वेरी फर्स्ट रिस्क इज़ द रिस्क ऑफ डाइंग टू अर्ली. ऐसा हो सकता है किसी पर्टिकुलर पर्सन की डेथ बहुत जल्दी हो जाए. एंड द सेकेंड वन, रिस्क ऑफ डाइंग टू लेट. ऐसा भी हो सकता है कि जो पर्टिकुलर पर्सन उसकी डेथ बहुत लेट में हो. देन नाउ हियर अराइजेस अ क्वेश्चन अराइजेस कि रिस्क कहाँ से आया? सो इफ़ अ पर्टिकुलर पर्सन डाइज टू अर्ली तो उसकी पूरी फैमिली उस पर डिपेंडेंट है. सो दिस प्रोवाइड्स द फाइनेंशियल सपोर्ट टू देयर फैमिली सो दैट दे कैन अर्न देयर लाइवलीहुड, सो दैट दे कैन मेंटेन देयर बेसिक रिक्वायरमेंट्स. एंड सेकेंड, रिस्क ऑफ डाइंग टू लेट में क्या होता है? लोग इंश्योरेंस लेते हैं. वाई? सो दैट दे कैन बी available with the financial assistance, financial support. They may be the economically independent even at the age of their old time, so that they can incur all the expenditures of their life. These are the two risks for which people used to take the life insurance: risk of dying too early and risk of dying too late. Now beta see further. इन लाइफ इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट द प्रीमियम कैन बी पेड मंथली. अब ये जो लाइफ इंश्योरेंस है इसमें जो आप प्रीमियम पे कर रहे हैं, है ना, लाइफ इंश्योरेंस में जो आप प्रीमियम पे कर रहे हैं, देयर आर डिफरेंट ऑप्शंस टू पे इट. यू कैन पे इट मंथली, यू कैन पे इट क्वार्टरली, यू कैन क्वार्टरली दैट मीन्स 4 months. ठीक है, यू कैन पे इट क्वार्टरली. यस, यू कैन पे इट हाफ ईयरली और एनुअली. ठीक है, यहाँ पे आप जो प्रीमियम है उसको आप एवरी मंथ पे कर सकते हैं, चाहो तो हर 3 months में क्वार्टरली पे कर सकते हो, चाहो तो हर 6 months में पे कर सकते हो, और यू कैन पे वंस इन अ ईयर. दिस इज एनुअली. एंड द इंश्योरर पेज द पॉलिसी अमाउंट एट द डेथ और एट द एक्सपायरी ऑफ अ स्पेसिफिक पीरियड. और जो आपका इंश्योरर है वो या तो पर्टिकुलर पर्सन की डेथ पे या फिर उससे पहले जो उसका टाइम पीरियड अगर एक्सपायर हो जाता है तो वो आपको कंपनसेशन क्या करेगा? पे करेगा. ठीक है. देयर इज़ अ नोट बेटा सी. द प्रिंसिपल ऑफ इंडेमिनिटी, the principle of contribution and the principle of subrogation are not applicable to life insurance policy. important to note. इससे आपके 1 marks के क्वेश्चंस क्या हो सकते हैं बेटा? अराइज हो सकते हैं कि बताइए इन विच कंडीशंस द लाइफ इंश्योरेंस, इन विच कंडीशन the different principles of indemnity, principle of contribution doesn't apply. So you can give the answer that in the condition of life insurance policy the principle of indemnity, contribution and subrogation doesn't apply. Now the next topic, main elements of life insurance. लाइफ इंश्योरेंस के मेन एलिमेंट्स कौन से हैं? सी द फर्स्ट वन, द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ लाइफ इंश्योरेंस इज अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ अटमोस्ट गुड फेथ. इट इज अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ अटमोस्ट गुड फेथ. दैट मीन्स एवरीथिंग इज टू बी डिस्क्लोज बिटवीन इंश्योरर एंड इंश्योर्ड. सेकेंड, द इंश्योरेबल इंटरेस्ट मस्ट बी प्रेजेंट एट द टाइम ऑफ टेकिंग पॉलिसी. यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है बेटा, सेकंड पॉइंट को बहुत ध्यान से सुनेंगे. दैट वाइल टेकिंग द इंश्योरेंस पॉलिसी, जो आपका इंश्योरेबल इंटरेस्ट क्लॉज है वो एप्लीकेबल होना चाहिए, प्रेजेंट होना चाहिए. इट इज़ नॉट कंपल्सरी दैट इट विल बी प्रेजेंट एट द टाइम ऑफ मैच्योरिटी. इसका मतलब क्या हो गया? फॉर एग्जाम्पल अ पर्टिकुलर पर्सन ABCD हैव टेकन द लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी ऑफ हिज वाइफ एंड आफ्टर सर्टेन, जब उसने अपनी वाइफ की लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी ली तो उस टाइम पे उससे क्या है? एक रिलेशन है. इन दिस कंडीशन द पर्टिकुलर पर्सन कैन टेक द लाइफ इंश्योरेंस ऑफ दैट पर्टिकुलर of his wife. Now after 10 years they get divorced. उनका क्या हो गया बेटा? डाइवोर्स हो गया. नाउ द आफ्टर 15 years जो उनकी इंश्योरेंस पॉलिसी है वो क्या हो गई? मैच्योर हो गई. तो इन दिस कंडीशन द कंपनसेशन विल बी पेड टू द पर्टिकुलर पर्सन ऑन द नेम ऑफ होम द इंश्योरेंस पॉलिसी इज टेकन. अब ऐसा नहीं है कि अगर अब वो हस्बैंड एंड वाइफ नहीं है तो अब उसका कंपनसेशन पे आउट नहीं होगा, ऐसा नहीं होगा. ठीक है. द नेक्स्ट वन, लाइफ इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट इज नॉट अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमिनिटी. इट इज़ नॉट अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमिनिटी, नॉट अ प्रॉफिट मेकिंग कॉन्ट्रैक्ट. दैट इज़ वाई whatever the amount of compensation is there, whatever the amount is there to be paid, it is decided in advance. है ना. आपका इंश्योरेंस में हमेशा लॉस होने के बाद पता चलता है कितना अमाउंट पे करेंगे. बट इफ़ यू टॉक अबाउट द लाइफ इंश्योरेंस, अबाउट द एश्योरेंस, तो आपकी डेथ से पहले
ही आपको बता दिया जाता है कि इफ़ यू विल डाई और इफ़ यू विल एबल टू मैच्योर योर लाइफ इंश्योरेंस, तो उस कंडीशन में आपको इतना सर्टेन अमाउंट मिलेगा, ठीक है। तो दीज आर द मेन एलिमेंट्स ऑफ life insurance policy. Now we are coming to the second part of insurance, that is a fire insurance. As the name is signifying, it is an insurance, it is a contract between insurer and insured, in which insurer makes it confirm that whenever the loss will be occur due to fire event, any of the event that is associated with the fire, then the loss will be compensated by the insurance company or by the insurer. See further, fire insurance provides protection against the loss or the damage by the फायर, लाइटनिंग एंड एक्सप्लोजन। किस किस से आपको प्रोटेक्शन मिलती है? फायर से, लाइटनिंग से और एक्सप्लोजन से, ठीक है। आगे देखिए नोट में, ऑल द प्रिंसिपल्स ऑफ इंश्योरेंस आर एप्लीकेबल ऑन द फायर इंश्योरेंस। देयर इज नॉट इवन अ सिंगल प्रिंसिपल दैट इज नॉट एप्लीकेबल इन द कंडीशन ऑफ फायर इंश्योरेंस। सो now we are coming to the next topic, that is the main elements of fire insurance. The very first, the insurable interest should be present at the time of taking policy as well as at the time of loss. दोनों ही टाइम पे, पॉलिसी लेने के टाइम पे और जब आपको लॉस हुआ है, दोनों ही टाइम पे आपका उससे एक इंश्योरेबल इंटरेस्ट होना चाहिए. दैट मीन्स द एसेट मस्ट बी एसोसिएटेड विद यू एट द टाइम ऑफ टेकिंग ऑफ द पॉलिसी एज वेल एज एट द टाइम ऑफ लॉस. Second, the contract of fire insurance is also a contract of utmost good faith. That means everything is to be disclosed. Third, principle of indemnity is strictly applicable. Indemnity is strictly applicable. That means whatever the amount of loss is there, only that will be contributed or compensated by the insurance company or by the insurer. And the last one, the compensation is paid only when the loss is due to fire. Another thing, if you are having a suffering from loss but loss is not due to fire, in that condition the insurer will not pay any of the compensation. It is compulsory that the loss must be associated with the fire only. Now the third type of insurance, that is the marine insurance. It is just like the fire insurance. There was the cause must be the fire. Now here the cause must be the सी पैरल्स. क्या होना चाहिए बेटा? सी पैरल्स होना चाहिए. इन दिस द लॉस और द लॉस अकर्ड इवेंट मस्ट बी एसोसिएटेड विद द सी. दे कैन बी द स्टॉर्म, दे कैन बी द कॉलिजन, कैप्चर, सीजर, सिंकिंग ऑफ द शिप, है ना. ये सारे कॉज इसके हो सकते हैं जिसकी वजह से आपको क्या मिलता है बेटा? मरीन इंश्योरेंस मिलता है. सी द टाइप्स ऑफ मरीन इंश्योरेंस. ठीक है, मरीन इंश्योरेंस पॉलिसी के भी कुछ क्या होते हैं बेटा? टाइप्स होते हैं. द वेरी फर्स्ट इज द कार्गो इंश्योरेंस. This form of insurance or marine insurance includes the cargo for the goods contained in the ship and the personal belongings of the crew and passenger member. If we talk about the cargo insurance, so whatever the good have been uploaded in the ship, whatever the belongings are there of crew member of the passenger, जब हम इन गुड्स का क्या करते हैं? इंश्योरेंस करते हैं, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? कार्गो इंश्योरेंस. कार्गो का मतलब होता है बेटा गुड्स. जितने भी हमने गुड्स अपलोड किए हैं, जितने पैसेंजर का अपना सामान है, जितना क्रू मेंबर का सामान है, ऑल दिस कम्स अंडर द कैटेगरी ऑफ द cargo insurance. Second one is the hull insurance. Under this the whole ship is इंश्योर्ड. इसमें हम लोग क्या करते हैं? जो शिप है, जो शिप की बॉडी है, जो शिप का इंफ्रास्ट्रक्चर है, उसे क्या करते हैं बेटा? इंश्योर करते हैं. इट कवर्स द इंश्योरेंस ऑफ द वेसल्स एंड इट्स इक्विपमेंट्स. जितने भी उसमें वेसल्स, जितने भी उसमें इक्विपमेंट्स लगे हैं, जितने भी उसमें फर्नीचर है, जितने भी उसमें इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स हैं, उन सब का जो इंश्योरेंस है, दैट इज कम्स अंडर द कैटेगरी ऑफ द हल इंश्योरेंस. और हल इंश्योरेंस कौन करवाएगा? ओबियसली हुसोएवर इज ओइंग द शिप. जिसकी वो शिप होगी, वही पर्टिकुलर पर्सन क्या करेगा? अपने इंश्योरेंस, अपने शिप की बिलोंगिंगनेस की, अपने शिप की क्या करवाएगा बेटा? इंश्योरेंस करवाएगा. एंड नाउ कम द लास्ट टाइप ऑफ मरीन इंश्योरेंस इज द फ्रेट इंश्योरेंस. सी इट वेरी केयरफुली बेटा. सच इंश्योरेंस प्रोवाइड्स प्रोटेक्शन अगेंस्ट द लॉस ऑफ फ्रेट. फ्रेट मतलब क्या होता है आपको बताऊँ? तो किराया. किराया, दैट मीन्स द मॉनेटरी अमाउंट दैट यू हैव टू पे for distributing your good, for moving your good from one particular place to the another particular place. जो आप monetary amount पे करते हैं उसको हम लोग freight बोलते हैं. ठीक है. In many cases the owner of the goods pay the freight only when the delivery of the goods is secured on the harbor. बहुत सी कंडीशन में ऐसा होता है कि जो गुड्स को सेंड आउट कर रहा है, सेंड कर रहा है, वो तभी आपको फ्रेट पे करता है, किराया पे करता है, जब आपका गुड प्रॉपरली सेफली उस पर्टिकुलर डेस्टिनेशन पे पहुंच जाता है, जहाँ पे कि आपको उसको क्या करना होता है बेटा? पहुंचाना होता है. इफ़ द शिप इज़ लॉस्ट इन द वे.
अगर शिप क्या हो जाए, इन मिड बिटवीन लॉस्ट हो जाए, कहीं गुम हो जाए और डैमेज हो जाए सामान, ठीक है, देन शिपिंग कंपनी लूज द राइट टू टेक द फ्रेट। इन दिस कंडीशन अगर ऐसा कुछ होता है, कोई मिसहैप होता है, तो उस कंडीशन में जो शिपिंग कंपनी है वो आपसे कोई भी फ्रेट चार्ज नहीं कर सकती। दिस इज अबाउट द फ्रेट इंश्योरेंस। नाउ वी आर कमिंग टू द मेन एलिमेंट्स ऑफ द मरीन इंश्योरेंस। द फर्स्ट वन, इंश्योरेबल इंटरेस्ट शुड बी प्रेजेंट एट द टाइम ऑफ लॉस। जो आपका इंश्योरेबल इंटरेस्ट है वो एट द टाइम ऑफ लॉस क्या होना चाहिए, प्रेजेंट होना चाहिए। सेकेंड, the contract of marine insurance is also a contract of utmost good faith. That means everything is to be disclosed. Third, the principle of indemnity is strictly applicable on marine insurance. Whatever the amount of losses will be there, that will only be compensated. Last but not the least, the compensation is paid only when the loss is due to sea peril. जब आपका लॉस किसकी वजह से होगा बेटा, ओनली ड्यू टू सी पैरल्स, तभी आपको क्या किया जाएगा, कंपनसेशन पे आउट किया जाएगा, किसमें, आपके मरीन इंश्योरेंस में। नाउ वी आर कमिंग टू द लास्ट वन, दैट इज द हेल्थ इंश्योरेंस। एंड व्हाट इज हेल्थ इंश्योरेंस? हेल्थ इंश्योरेंस प्रोवाइड्स फॉर पेमेंट ऑफ मेडिकल एक्सपेंसेस इन केस ऑफ इलनेस ऑफ द इंश्योर्ड पर्सन एंड हिज फैमिली। जो पर्टिकुलर पर्सन जिसने अपना इंश्योरेंस करवाया है, अगर उसको कोई इलनेस हो जाती है, उसकी फैमिली को कोई इलनेस हो जाती है, तो उस टाइम पे मेडिकल एक्सपेंसेस को बियर आउट करने के लिए, पे आउट करने के लिए जो इंश्योरेंस हम लोग लेते हैं, दैट इज़ नोन एज हेल्थ इंश्योरेंस, ठीक है। एंड देर आर द फॉलोइंग टाइप ऑफ रिस्क कवरेजेस। बहुत से जो रिस्क कवरेजेस उसके होते हैं, डिफरेंट टाइप्स होते हैं। कौन कौन से रिस्क कवर होंगे, दैट वी विल सी वन बाय वन। द फर्स्ट वन इज़ द बेसिक मेडिकल एक्सपेंसेस, जो आपको साफ पता लग रहा होगा। इट कवर्स द एक्सपेंसेस ऑफ द हॉस्पिटलाइजेशन एंड डॉक्टर्स फीस। आप डॉक्टर के पास जाते हैं, डॉक्टर से कंसल्ट करते हैं, डॉक्टर की एक चार्ज फीस होती है, तो उन सबको ये क्या करता है बेटा, कवर अप करता है। सेकेंड देखेंगे, मेजर मेडिकल एक्सपेंसेस। इट कवर्स द कॉस्ट ऑफ कैटास्ट्रॉफिक इलनेस, ठीक है, जो ऑल ऑफ सडन आपको कोई डिजास्टर हो गया, कोई डिजीज़ हो गई है, तो उन डिजीज़ से कॉप अप करने के लिए, उसके एक्सपेंसेस से कॉप अप करने के लिए मेजर मेडिकल एक्सपेंसेस होते हैं बेटा। थर्ड, लॉन्ग टर्म हॉस्पिटलाइजेशन। इसमें क्या होता है, इट कवर्स नर्सिंग होम चार्जेस फॉर द elderly people. For example, a particular person got the cancer, now the particular person hospitalized over there for the very long period of time, तो उसमें जितना भी उसका पूरा नर्सिंग होम जहाँ वो पर्टिकुलर पर्सन एडमिट है, उसका जो भी एक्सपेंसेस है, दैट विल बी बेयर्ड आउट अंडर द लॉन्ग टर्म हॉस्पिटलाइजेशन। इसमें आपके जो डे टू डे एक्सपेंसेस हैं, भले उनकी कॉस्ट ज़्यादा हो, उसको हम लोग इंक्लूड नहीं करेंगे। नेक्स्ट, मेडिकल सप्लीमेंट। सप्लीमेंट मतलब क्या होता है बेटा, मेडिसिन। तो इसमें जनरली अगर हम लोग बात करें, तो इट फिल्स द गैप इन द मेडिकेयर प्रोग्राम्स ऑफ सोशल सिक्योरिटी। जनरली जो मेडिसिन होता है, ये बेसिकली मेडिसिन के लिए होता है। एंड द लास्ट वन, दैट इज़ द डिसेबिलिटी इनकम। इट रिप्लेसेस द इनकम लॉस्ट बाय द इंश्योर्ड while the insured is unable to work. If the particular person just become disabled, for example, he lost one of his hand, one of his leg, he lost his eyesight, in this condition that particular person will be unable to earn anything, who is not having one hand, who is not having one leg, who is not having proper eyesight, the particular person will be unable to work. So in this condition, the health insurance scheme, disability income will be provided under the scheme of health insurance. So these are the all type of risk coverages under the health insurance. Now we are coming to the last topic, that is the difference between life insurance, fire insurance and marine insurance. So a lot of bases are there and a lot of differences are also there. We will see them. The very first, that is the subject matter. So beta, in the life insurance, द सब्जेक्ट मैटर इज़ द ह्यूमन लाइफ। उस पर्टिकुलर पर्सन ह्यूमन की लाइफ ही क्या आपका सब्जेक्ट मैटर क्या होता है, मेन इंपॉर्टेंट एलिमेंट। इफ़ यू टॉक अबाउट द फायर इंश्योरेंस, देन द सब्जेक्ट मैटर इज़ एनी फिजिकल प्रॉपर्टी और एसेट। जिसका भी आप फायर इंश्योरेंस करवा रहे हैं वो प्रॉपर्टी या फिर एसेट आपका सब्जेक्ट मैटर होगा। इन केस ऑफ मरीन इंश्योरेंस, द सब्जेक्ट मैटर इज़ शिप, कार्गो और फ्रेट। या तो आप शिप का करवाओगे, जिसको हमने हल बोला था, या आप कार्गो का करवाओगे, सामान का, या फिर आप क्या करवाओगे, फ्रेट का करवाओगे, ठीक है। तो दिस इज द सब्जेक्ट मैटर। सेकेंड एलिमेंट, इन द लाइफ इंश्योरेंस इट हैज़ एलिमेंट ऑफ प्रोटेक्शन एज वेल एज इन्वेस्टमेंट। यहाँ पे प्रोटेक्शन भी है, इन्वेस्टमेंट भी है। प्रोटेक्शन कैसे, इफ़ यू डाइज टू अर्ली, तो आपका जितना भी अमाउंट ड्यू है वो आपकी फैमिली को मिलेगा, तो वो आपकी फैमिली को प्रोटेक्ट करेगा, तो ये प्रोटेक्शन हो गया। इफ़ यू विल नॉट डाई टू अर्ली, यू विल डाई टू लेट, इन दिस कंडीशन इट विल प्रोवाइड यू द ओल्ड एज पेंशन इन सॉर्ट ऑफ अ बल्क अमाउंट, जिससे वो आपका फर्दर क्या हो गया, इन्वेस्टमेंट भी हो गया, ठीक है। इफ़ यू टॉक अबाउट द फायर इंश्योरेंस, इट हैज़ द एलिमेंट of property and the same with the marine insurance.
ओनली द कंपनसेशन विल बी पेड व्हेन यू विल फेस लॉस। तो ये आपको लॉस से क्या करता है, प्रोटेक्ट करता है, फायर और मरीन इंश्योरेंस बोथ। नेक्स्ट, इंश्योरेबल इंटरेस्ट। In life insurance, the insurable interest must be present at the टाइम ऑफ टेकिंग ऑफ द पॉलिसी। जब आप पॉलिसी ले रहे हैं उस टाइम पे आप उस पर्टिकुलर पर्सन से क्या होने चाहिए, किसी फॉर्म में एसोसिएटेड होने चाहिए, किसी रिलेशन में एसोसिएटेड होने चाहिए, ठीक है। एट द एंड इट इज़ नॉट कंपल्सरी। इफ़ यू टॉक अबाउट द फायर इंश्योरेंस, देन इंश्योरेबल इंटरेस्ट मस्ट बी प्रेजेंट एट द टाइम ऑफ टेकिंग पॉलिसी एज वेल एज एट द टाइम ऑफ लॉस। दोनों ही टाइम पे जो इंश्योरेबल इंटरेस्ट है वो प्रेजेंट होना चाहिए। एंड इफ़ यू टॉक अबाउट द मरीन इंश्योरेंस, देन इंश्योरेबल इंटरेस्ट मस्ट बी प्रेजेंट एट द टाइम ऑफ लॉस। लॉस के टाइम पे आपका जो इंश्योरेबल इंटरेस्ट है आप उससे क्या होने चाहिए, एसोसिएटेड होने चाहिए। नेक्स्ट, दैट इज़ द ड्यूरेशन। अगर हम लोग लाइफ इंश्योरेंस की बात करें तो जनरली इनकी जो ड्यूरेशन होती है दैट इज़ फ्रॉम 5 to 30 ईयर और द होल ईयर, ठीक है। बहुत लॉन्ग पीरियड का टाइम का पीरियड का होता है ये। इफ़ यू टॉक अबाउट द फायर एंड मरीन इंश्योरेंस, तो फायर इंश्योरेंस की अगर हम लोग बात करें बेटा तो इट इज़ जनरली ऑफ 1 ईयर, and the marine insurance is also on the year basis or it can be for the period of voyage। voyage क्या होता है बेटा, जो हम जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, ट्रेवलिंग, सफ़र का जो टाइम होता है उसको हम लोग voyage बोलते हैं। नेक्स्ट, इंडिमिनिटी। सो इन द लाइफ इंश्योरेंस प्रिंसिपल ऑफ इंडिमिनिटी डज नॉट एप्लीकेबल, डज नॉट अप्लाई, बट इट इज़ अप्लाई इन बोथ ऑफ अदर इंश्योरेंस, लाइफ इंश्योरेंस, सॉरी फायर इंश्योरेंस एंड मरीन इंश्योरेंस। नेक्स्ट वी आर कमिंग, दैट इज़ द लॉस मेजरमेंट। सो इन द कंडीशन ऑफ लाइफ इंश्योरेंस वी कैन नॉट मेजर द अमाउंट ऑफ लॉस। किसी पर्टिकुलर पर्सन के जाने से कितना लॉस हो रहा है हम उसको मेजर नहीं कर सकते। एंड इन द कंडीशन ऑफ फायर एंड मरीन इंश्योरेंस, तो दोनों ही कंडीशन में जो लॉस है वो मेजरेबल है। नेक्स्ट, सरेंडर वैल्यू। सरेंडर वैल्यू क्या होता है बेटा, सरेंडर वैल्यू इज़ दिस कि मैं अब फर्दर अपनी जो इंश्योरेंस है उसे कंटिन्यू नहीं कर सकती हूँ, तो आई वॉन्ट वट एवर द अमाउंट आई हैव डिपॉजिटेड दैट बैक। मुझे वो सर्टेन अमाउंट बैक चाहिए, आई वॉन्ट दैट सर्टेन अमाउंट रिटर्न, दैट मस्ट बी रिटर्न टू मी, दिस इज़ द सरेंडर वैल्यू, ठीक है। सो इन द लाइफ इंश्योरेंस जो आपके पास सरेंडर वैल्यू वाला ऑप्शन है वो अवेलेबल होता है। बट इफ़ यू टॉक अबाउट द फायर एंड मरीन इंश्योरेंस, सो वंस यू हैव पेड द अमाउंट ऑफ प्रीमियम यू आर नॉट हैविंग एनी ऑप्शन ऑफ द सरेंडर वैल्यू। अगर आपने वो अमाउंट एक बार डिपॉजिट कर दिया है इट विल बी वैलिड टिल 1 ईयर, वो 1 साल तक आपका अमाउंट वैलिड रहेगा। इफ़ यू फेस एनी लॉस तो आपको कंपनसेशन मिलेगा, इफ़ यू डजंट फेस एनी लॉस तो आपको कोई भी कंपनसेशन नहीं मिलेगा, वो सर्टेन अमाउंट भी आपको रिटर्न नहीं होगा। नेक्स्ट, पॉलिसी अमाउंट। तो अगर हम लोग बात करें किसकी बेटा, लाइफ इंश्योरेंस की, तो इट कैन बी एनी अमाउंट। जो पॉलिसी अमाउंट है लाइफ इंश्योरेंस का वो डिटरमाइंड नहीं है। बट इफ़ यू टॉक अबाउट द फायर इंश्योरेंस, सो इट कैन नॉट बी मोर देन द वैल्यू ऑफ सब्जेक्ट मैटर। सपोज आई हैव अ प्लांट एंड मशीनरी ऑफ ₹7 लाख, तो मैं उसका इंश्योरेंस मैक्सिमम कितने का करवा सकती हूँ, 7 लाख का। 7 लाख से ज़्यादा मैं उसका इंश्योरेंस नहीं करा सकती। सो वट एवर द वैल्यू सब्जेक्ट मैटर इज़ देयर, उससे ज़्यादा का आपका फायर इंश्योरेंस नहीं हो सकता। एंड इफ़ वी टॉक अबाउट द मरीन इंश्योरेंस, इट कैन नॉट बी मोर देन द मार्केट वैल्यू ऑफ द कार्गो और शिप। जो आपका कार्गो, जो आपका सामान है, जो आपका शिप है, उसकी मार्केट वैल्यू से ज़्यादा आप उसको जो पॉलिसी अमाउंट है उसे आप कोट नहीं कर सकते। एंड द लास्ट, दैट इज़ रिस्क। तो अगर हम लोग लाइफ इंश्योरेंस की बात करें तो यहाँ पे रिस्क कंपैरेटिवली बहुत कम होता है या फिर नहीं होता है। क्यों? बिकॉज आइदर द पर्सन विल डाई sooner or the particular person will die later on. So if that particular person will die later on, in that condition the maturity will comes earlier, तो उसको हर हाल में उसका अमाउंट मिलना ही मिलना है। या तो उसकी डेथ जाएगी उसकी फैमिली को मिलेगा, अगर उसकी डेथ नहीं हो रही तो उसको मिलेगा, तो रिस्क यहाँ पे ज़ीरो होता है। बट इफ़ यू टॉक अबाउट द फायर एंड मरीन इंश्योरेंस, तो यहाँ पे हमेशा एक अनसर्टेनिटी होती है। इफ़ द लॉस विल अकर, इफ़ द इवेंट विल अकर, देन ओनली द कंपनसेशन विल बी पेड। So this is all about the difference between life, fire and marine insurance. So dear student, today we have discussed about the difference between insurance and assurance. Thereafter we have discussed about the different type of insurances, जिसमें हम लोगों ने देखा बेटा आपका life insurance, fire insurance, marine insurance and health insurance. And thereafter the last this comparison table. This is all about today. God bless you all. Thank you very much.